Okay, students. Hello and welcome to the third session, fourth, whatever. Now we will talk about the wireless network technology, means the second medium of connection between computers, that is network connections. We have already knew that we have known already that the physical medium is a type of connection in which we use physical mediums like coaxial, twisted pair, coaxial and optical fibers to connect the computers in a network. Now in this session we will study about the other way of connection between the computers. Here we will talk about wireless connections. Wireless connection means no wire. Wireless means no wire. Then if there is no wire, then how the computers will be connected? The computers will be connected through some waves like infrared waves, radio waves, microwaves, etc. In these three types of waves, the computers are connected through each other in a network or even in the internet. So in the this wireless connection was firstly tested in Hawaii Islands by a professor, and he named it as Aloha Net, and he managed to establish connection between the computers through wirelessly. Here it is. Just a minute. This is the here. Okay, so now we will go ahead. So the firstly wireless network was established and it was called Aloha Net. Here a question, you may prepare for a question that what is Aloha Net. Then you can say that the Aloha Net was named as the first wireless communication between the computers by a scientist or a professor in Hawaii Islands. So we will now we go ahead. The first wireless communication through which the communication is done, here it is Bluetooth. Bluetooth is very is not so capable communication medium between the computers or any electronic devices. Means Bluetooth has some little range, about about 20 feet apart, and beyond that Bluetooth communication becomes very weak and transmission lost beyond that distance. So Bluetooth was started earlier when Wi-Fi technology were not known so much, so widely. So the Bluetooth was started, and it in Bluetooth technology a radio frequency is transmitted. Means Bluetooth technology is done through radio frequencies. So it has some properties that Bluetooth technology ranges some feet, like 10 to 20 feet, and it uses a radio frequency, and it allows
it can connect to many devices, but the drawback is that its distance is very less, and it needs some power source connected with the Bluetooth device always. And if the power source degrades, then according to that Bluetooth communication may also degrade. तो कहने का मतलब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो इसके लिए बैटरी चाहिए आपको, ऑलवेज यू नीड सम पावर सोर्स, ताकि वो जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो काम करता रहे और रेडियो फ्रीक्वेंसी वो निकालता रहे, ताकि आपका कम्युनिकेशन भी जारी रह सके। तो इस तरह से इसके फायदे, तो जब वाईफाई नहीं स्टार्ट हुआ था तो यही एकमात्र वायरलेस का सबसे स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी था, तो ऑब्वियसली इसे सबको यूज़ करना ही था। तो उसमें इसकी खासियतें थी कि ये जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होता था। सेकेंडली, एक साथ कई डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर सकता था। थर्डली, इसका रेंज जो है थोड़ा अभी के मुकाबले, अभी जितना हम लोग वाईफाई में देखते हैं उससे बहुत ही काफ़ी कम था। और इसे पावर सोर्स एक ऑलरेडी, जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कोई ब्लूटूथ डिवाइस अगर यूज़ करते हैं तो उसमें बैटरी हमें लगानी पड़ती है। तो इस तरह से इसका ये खासियतें हैं कि इसके लिए एक पावर सोर्स चाहिए। और सो वी कैन हियर डिस्कस so these are its means properties. Again जो है इसके ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, रेडियो वेव्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तो ट्रैवल कर जाते हैं पर लेकिन ये बाकी जो जैसे और जो नेचुरल फेनोमेनन होते हैं जैसे कि थंडरिंग, रेन, स्टॉर्म, इनसे ये जो है इफेक्टेड हो जाते हैं और इनकी सिग्नल जो है सिग्नलिंग वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए उस समय ब्लूटूथ कम्युनिकेशन थोड़ा आपका हेजी हो जाता है, मतलब थोड़ा लैग करने लगता है, स्पीड उसकी घट जाती है। तो ये जो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस आप बोल सकते हैं कि अगर इस तरह से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के अगर आपको लिमिटेशंस पूछे जाएं तो वो आपका आंसर होना चाहिए कि नंबर 1 कि इसका रेंज जो है वो कुछ मीटर्स तक होता है, अबाउट 5 to 10 मीटर्स। इसके लिए एक पावर सोर्स रेगुलरली चाहिए, अदरवाइज जो है वो काम नहीं करेगी। तीसरी बात जो है वो इट इज़ अफेक्टेड बाय द natural phenomena like storm, thundering, etc., lightning, etc., इससे वो इफेक्टेड होती है। तो ये उसके लिमिटेशंस आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Satellite, we know that satellites are called which orbiting around the Earth in the space, and through which here we can see that how one means this may called as transmitter or this may called as transmitter। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसमीटर जो है वह कैसे ट्रांसमिट कर रहा है डाटा को सैटेलाइट को, सैटेलाइट उसे फिर दूसरे रिसीवर को ये रिसीव कर रहा है उसको, और फिर यहाँ से ये टावर जो है दिस जेंटलमैन हैज सम टावर इन हिज हाउस एंड इट रिसेप्ट्स द सिग्नल्स फ्रॉम दिस रिसीवर एंड गेट्स इट्स हिज प्रोग्राम इन टेलीविजन और समथिंग। सो ये टेलीविजन के लिए खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और इसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो नेटवर्क होते हैं उसके लिए सैटेलाइट भी सरकार, ये गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती है, जो लाइक मिलिट्री, मेडिकल फैसिलिटीज़, नेशनल कैलामिटीज़ के टाइम पे, इस तरह जो मीन्स अगर इमरजेंसी पीरियड जो होती है तो उस वक्त जो है सैटेलाइट का कम्युनिकेशन भी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी वही होता है, जो है आपका वेव काम करता है, तो एक ट्रांसमिट कर रहा है वेव के जरिए, यहाँ आपको स्ट्रेट दिखाया जा रहा है बट इट गोज लाइक दिस वेव्स, दिस टाइप के वेव के जरिए जाता है, सैटेलाइट उसको रिसीव करता है, फिर वापस वो भी वेव के जरिए, माइक्रोवेव के जरिए इसको ट्रांसमिट करता है। तो
और इस तरह से ये कम्युनिकेशन पूरा होता है। अगला है आपका थर्ड जनरेशन। अब ये एक मतलब ये एक स्टैंडर्ड है जो है इसका कम्युनिकेशन का। तो जैसे हम लोग पहले अभी 4G यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक जस्ट जनरेशन का मतलब वर्जन है कि पहले 2G था, उसके पहले 1G था, फिर 2G आया, फिर 3G, फिर 4G, इस तरह का। तो ये जनरेशन में होता क्या है कि देयर इज सम बेनिफिट्स आर इंक्रीज्ड बाय एंड बाय, थोड़ी थोड़ी करके जो है उसमें से सुधार की जाती है, थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ाई जाती है, आपको जो है प्रॉपर्टीज कुछ बढ़ाए जाते हैं, और इस तरह से जो है वो उसका जनरेशन चेंज कर दिया जाता है। जैसे अगर मान लो आप फर्स्ट जनरेशन में जैसे 2G जब था तो उस समय वीडियो कॉलिंग नहीं हो रही थी, तो जब 3G आया तो उसमें एक नया चीज ऐड हो गया कि वो अब वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है, तो एक सुविधा बढ़ गई। अब 3G से जब 4G में आया तो 3G में क्या था कि थर्ड जनरेशन जब था तो वीडियो कॉलिंग तो होती थी, बट नॉट सो मीन्स स्मूथली नहीं हो पाता था। तो 4G में साइंटिस्ट ने उसका स्पीड बढ़ाया, उसका रेंज बढ़ाया, ताकि ज़्यादा डाटा बिट जो है एक साथ जा सके। तो इसलिए जब उसका जो चैनल का जो विड्थ है, चैनल का विड्थ जब बढ़ा, मीन्स ये आप इसके जो है आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि मान लो कि आप कहीं से किसी पाइप से पानी आ रहा है, किसी टंकी से, एक टंकी से दूसरे टंकी में पाइप के थ्रू पानी आप पास कर रहे हो। तो अगर पाइप पतली रहेगी तो कम पानी जाएगा, लेकिन अगर आप जो है पाइप थोड़ी बड़ी लेंगे, मोटी लेंगे, तो उससे ज़्यादा पानी उधर जाएगा। तो चैनल में जो माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स के जो चैनल होते हैं उनका भी यही मीन्स कॉन्सेप्ट है। अब वो पाइप के जैसे आपको दिखाई तो नहीं पड़ेंगे थ्रू द एयर, बट एक्चुअली वो एक रेंज बंधा हुआ रहता है कि जैसे 3G का रेंज है, मान लो कि 1 गीगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज, इतने के बीच का जो वेव्स है, रेडियो वेव्स, उतना ही 3G में था। 4G में तो वहाँ पे वीडियो कॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर इस रेंज को किस तरह से बढ़ाया जा सके, तो उन लोग ट्राई करते करते उनको वो बढ़ा पाए। तो देन इट बिकम्स फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज एंड टू 2 गीगाहर्ट्ज। यहाँ से लेकर के अब उन्होंने क्या कर दिया, उसे 1 गीगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज तक जो है उसको एक्सटेंड कर पाए वो लोग डिफरेंट इन्वेंशंस के जरिए। तो अब जो है वो यही चैनल विड्थ बढ़ गया, इसी को चैनल विड्थ बोलते थे। चैनल विड्थ बढ़ गया तो अब डाटा जो है ज़्यादा आपका जाने लगा, पास होने लगा ज़्यादा डाटा। मीन्स पहले मान लो कि अब थर्ड जनरेशन में ये चैनल था, इतने मोटी चैनल थे, तो इसमें जो डाटा जा रहा था, डाटा बिट्स जो जा रहे थे वो इतने ही जा रहे थे मान लो। अब जो है फोर्थ जनरेशन में इससे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई, तो अब जो है ज़्यादा डाटा अब जाने लगा। तो ज़्यादा डाटा जब पास होने लगा तो वीडियो कम सेकंड्स में जो है, 1 सेकंड में जो वीडियो का जो डाटा है पहले जितना जा रहा था, मान लो कि 1 सेकंड में पहले जा रहा था 44 KB, ये इतना डाटा जा रहा था। अब जो है डाटा वो 1 सेकंड में जो है मान लो आप 152 KB जाने लगा, किलोबाइट्स। तो अब ज़्यादा डाटा 1 सेकंड में जाने लगा, तो वीडियो लो जो आपका पहले वीडियो जो रुक रुक कर आती थी या स्मूथली नहीं हो पाती थी, अब वो स्मूथ भी होने लगा। तो इस तरह से ये जनरेशन में चेंज आया। मीन्स उनका जो और भी बहुत सारे चेंज आया, जैसे कि कंप्रेशन टेक्नोलॉजी में चेंज आया। मीन्स डाटा जो भेजा जाता है तो उसमें डाटा को ज़्यादा, जब डाटा की जो अमाउंट ज़्यादा डाटा हो जाता है डाटा का, तो उसे कंप्रेस कर दिया जाता है। जैसे हम लोग कपड़े ले आते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, तो अगर आप बहुत सारे कपड़े ले आते हो तो क्या करते हो, उसे थोड़ा दबा कर भर लेते हो अपने बॉक्स में या बैग में, ताकि ज़्यादा कपड़े अट जाए। तो ये टेक्नोलॉजी पहले जो है कम थी, और बाद वाले जो है बाद में अब वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी हुई, तो और भी ज़्यादा डाटा कंप्रेस करके भेजी जाने लगे। तो इस तरह से थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में इस तरह के चेंजेस आए, बहुत तरह के चेंजेस आए। एक तो चैनल का विड्थ बढ़ा, सेकेंडली जो है बहुत तरह की नई टेक्नोलॉजीज जैसे कंप्रेशन वाली टेक्नोलॉजी या वीडियो आउटपुट की जो टेक्नोलॉजी है वो भी फास्ट हुई। इस तरह से जो है बहुत तरह सुविधाएं बढ़ी, तो वो थर्ड जनरेशन से उसे तब फोर्थ जनरेशन कहा जाने लगा।
4th जनरेशन, तो इस तरह से 4th जनरेशन में 3rd जनरेशन से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिले। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है डाटा 4G सक्सेसर टेक्नोलॉजी ऑफ 3G, इट ऑफर्स मोर बैंडविड्थ एंड बैंडविड्थ। ये जो बैंडविड्थ जो बोली, जो मैं हमने दिखाया अभी 2 चैनल्स की जो विड्थ थी, उसे ही बैंडविड्थ बोलते हैं। मतलब वो गीगाहर्ट्ज का जो रेंज है उसे ही बैंडविड्थ बोलते हैं। तो सर्विस ये बढ़ गई। बैंडविड्थ इज अप्रॉक्स 100 मेगाहर्ट्ज एंड ट्रांसफर डाटा एट मच हायर रेट, डाटा रेट जो भी वो भी बढ़ गया। 4G टेक्नोलॉजी ऑल्सो रिफर टू एज मैजिक, इसलिए इसे उस समय मैजिक का नाम दे दिया गया। अगला जो है वाईफाई। तो वाईफाई का फुल फॉर्म जो होता है वायरलेस जो है फिडेलिटी, ये होता है। क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है तो इसे अगर इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे तो दैट गोइंग टू बी एज प्रोनाउंस्ड एज वायरलेस फैसिलिटी। तो वही जो है यहाँ पे वाईफाई कहा जाता है शॉर्ट में। तो इस मोस्ट, ये अभी सबसे पॉपुलर जो है इसमें कौन से वेव्स यूज किए जाते हैं? तो रेडियो वेव्स किए जाते हैं यूज। ये जो है आपके रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पर क्या यूज किया जाता है? तो रेडियो वेव्स। यहाँ RF लिखा हुआ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आप जो है ये हो गया आगे। एंड और दोनों के बीच में तो वाईफाई कनेक्शन में जो है रेडियो वेव्स जो है उसका यूज किया जाता है। और वाईफाई में स्पीड भी काफ़ी बढ़ गया, जो है ये स्पीड, लेटेस्ट स्पीड जो हो गया वो नेटवर्क का 54 Mbps। मीन्स Mbps का मतलब होता है Mbps मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड। ये है मेगा बिट्स पर सेकेंड, Mbps। तो इस तरह से जो है ये स्पीड बढ़ गया, मेगा बिट्स पर सेकेंड, 54 मेगा बिट्स पर सेकेंड इसके स्पीड हो गया। अच्छा, और सुविधाएं क्या बढ़ी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई। अब जो है ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आपका डाटा जो है कोई वो जो है हैक कर लेगा और आपके डाटा को वो यूज करने लगा, ऐसा संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम पासवर्ड फैसिलिटीज बीन अटैच्ड टू द वाईफाई नाउअडेज। सो ओके, तो इस तरह से अब हम और आगे बढ़ते हैं। आगे है वाईमैक्स। तो वाईमैक्स जो है वो वाईफाई जो है आपका थोड़ा कम रेंज का होता है। मीन्स इसका रेंज जो है एक बिल्डिंग रूम बोल लो आप, एक स्कूल का कैंपस बोल लो, यहाँ तक। या जैसे अभी तो नेचुरली कहाँ पे वाईफाई यूज़ होते हैं आपको बता दूं कि वाईफाई जो है वो यूज़ होते हैं, वाईफाई यूज़ होते हैं एक नंबर तो स्टेशंस पे होते हैं। सेकंड कहाँ पे होते हैं? एयरपोर्ट पे होते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं। एयरपोर्ट पे होते हैं। और उसके बाद आपकी जो है बहुत सारे ऑफिसेज में होते हैं, ऑफिस जो है आपका उसमें वहाँ पे होता है। तो इस तरह से वाईफाई का तो वो कम रेंज का होता है। जब यही वाईफाई ज़्यादा रेंज का हो जाता है, ज़्यादा रेंज का मतलब ये मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कि एक सिटी से दूसरा सिटी, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इस तरह के जब इसका रेंज बढ़ जाता है तो उसे हम लोग वाईमैक्स मतलब जैसा इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। तो इसका एक स्टाइलिश नाम दे दिया गया है, इसका होना चाहिए था WIMACCS ऐसा होता, यही चीज़ है, लेकिन उसे लंबा से उसे थोड़ा स्टाइलिश बना दिया गया, MAX यहाँ पे कर दिया गया। तो इसका रेंज जो है वो उसी तरह से, और इसकी स्पीड भी, क्योंकि ज़्यादा रेंज ज़्यादा दूर भेजना है तो आपको जो है रेंज उसकी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज जो है इट विल गॉट स्टक इन बिटवीन।
it will not reach to the destination, and how can then people will use that Wi-Fi. So WiMAX is nothing but the Wi-Fi of maximum range or a big range, means through the big geographical areas. So the Wi-Fi connection between two big geographical areas is called WiMAX. So it will what properties it will enhance over Wi-Fi? Firstly, it is a big range connection, means through kilometers or hundreds of kilometers. It may be happen as hundreds of किलोमीटर. इवन द वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इंटरनेट जो है, वो भी एक वाईमैक्स का ही एक एग्जाम्पल है. तो इस तरह से जो है वो ज़्यादा एरिया में होता है. नंबर 2, स्पीड जो है इसकी वो वाईफाई जो लोकल रहेगी उससे ज़्यादा ही फास्ट होगी, और इसके बीच में वही जो राउटर वगैरह तो रहते ही हैं. और इसका जो एक स्टैंडर्ड है, नॉर्मल स्टैंडर्ड, वो है आपका 70 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और या उससे ज़्यादा ही. अभी तो गीगाबिट्स पर सेकेंड में चला गया है. तो इस तरह से उसे ही वाईमैक्स कहता है. मतलब वाईफाई का ही एक अपर वर्जन, मीन्स एडवांस्ड वर्जन और एक्सटेंडेड वर्जन है, वो वाईमैक्स है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. तो ये मैं अगले सेशन में आपको देता हूँ. ओके, थैंक यू.